Hello everyone, welcome back to your science class. So students, in our previous video we discussed chapter 9 force and laws of motion of class 9 science, and in that chapter we have discussed what is force. Force क्या होती है, its mathematical expression of formula, its different types and its SI unit. हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है, इट्स अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या उसको पुल करते हो एंड इट स्टार्ट्स मूविंग और समथिंग इज affected by this, then it's called a force. And what is its mathematical expression? F is equal to m into a. Force is equal to mass into acceleration is the mathematical expression of force. Okay, now we have the different types of force. We discussed that forces are of two types. One is the balanced force and other is an unbalanced force. Balanced forces क्या होती है? वो forces which do not cause any movement, means the forces which are equal and opposite. Suppose आपके पास ये duster है and this duster you are having and I am pushing it or you are pushing it with 10 Newton force from right side and you are pushing it with 10 Newton force from left side. The both forces are equal. तो आपका क्या होगा यहाँ पे, there will be no movement. ये जो duster है ये यहीं का यहीं रहेगा. These kind of forces are the balanced forces. Unbalanced forces आपकी कौन सी आती है? अगर सेम हम इस duster को लें, इसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम देखें कि अगर मैं इस डस्टर को इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगाती हूँ और इधर से 5 न्यूटन, तो दिस 5 न्यूटन इज यूजलेस एंड हियर it has a net resultant force of 5 Newton. So the duster move from right to left. तो जहाँ से भी unequal forces आती हैं they cause the movement and are known as unbalanced forces. And जहाँ पे unequal नहीं equal forces होती हैं and they do not cause movement, these are called the balanced forces. उसके बाद हमने देखा था what are the effects of force. Effects of force means effects of force क्या होते हैं कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग वाज फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. आप अपनी बाइसिकल को अपना फोर्स लगा करके स्टार्ट कर सकते हैं, द योर बाइसिकल स्टार्ट्स मूविंग. सेकेंडली यू कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप अपनी बाइसिकल चला रहे हो, यू अप्लाई द ब्रेक्स एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स द बाइसिकल स्टॉप्स. सो दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स. द थर्ड वन इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है फोर्स. आपने अपनी मदर को रोटी बनाते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, द डो ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप. डिफरेंट काइंड्स की शेप आप वहाँ से बना सकते हो, ऑल्दो इट्स अ राउंड वन, बट आप वहाँ से उसका एग्जाम्पल लेकर के आप डिफरेंट शेप्स डेवलप कर सकते हो. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द it can change the direction of an object. आप suppose खेल रहे हैं बैडमिंटन, one player is standing on a right side and one player is standing on left side. तो जो right side से कॉर्क आपकी जाती है, तो from the left side the next other player hits it in an opposite direction. तो direction भी आप फोर्स से चेंज कर सकते हो. You can change the speed of an object. आप अपनी बाइक चला रहे हो, आप कभी तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो, कभी आप उससे ज़्यादा भी जा सकते हो, बट यू डोंट हैव टू ड्राइव एट दैट स्पीड. ओके, तो आप स्पीड भी चेंज कर सकते हो. 50 किलोमीटर पर आवर से आप नीचे भी आ सकते हो. यू कैन स्लो डाउन योर स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दैट ऑल इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नाउ कम्स द लॉज ऑफ मोशन. We have discussed Newton's first, second and third law of motion. What was Newton's first law of motion? Newton's first law of motion states that an object tends to remain in a state of rest or motion until and unless an external force acts on it. For example, you are having a duster here. So this duster, when kept at rest, will not move at all until I here put it with a force. कुछ ना कुछ फोर्स लगा करके ही किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को आप मोशन पे ला सकते हो. कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको आप रेस्ट पर ला सकते हो, बट विदाउट फोर्स इट्स नॉट पॉसिबल. तो फर्स्ट लॉ यही कहता है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. इनर्शिया होता है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट इट्स स्टेट. जो उसकी
स्टेट है वो उसी में रहने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग जाए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर बाइसिकल एंड यू वांट टू राइड योर बाइसिकल, तो आप उस पर अपनी मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, देन योर बाइसिकल स्टार्ट्स मूविंग। फिर आप चाहेंगे कि आपकी बाइसिकल रुक जाए, then what will you do? You will apply the brakes and will keep your bicycle at rest position. तो यही चीज फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय p एंड मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि जब भी कभी मोमेंटम जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जब उसमें चेंजेस आएंगे टाइम के साथ साथ, तो वो जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स, वो फोर्स के बराबर होगा। मीन्स आप जितना फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम निकालने वाले फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू a इन आवर दिस वीडियो। नाउ वी हैव द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब भी कभी कोई एक्शन होगा उसके लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रॉकेट इज मूविंग, आपने देखा है रॉकेट मूव कर रहा है तो उसकी जो गैसेस हैं दे आर पुश्ड इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन, द गैसेस आर पुल्ड बैकवर्ड एंड द रॉकेट स्टार्ट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या है? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ऐसा यही नहीं रॉकेट का मूवमेंट, एवरी मूवमेंट हम लोग जब चल रहे हैं तो हमारा भी लेग्स मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो सब क्या है? दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से ही वी आर हैविंग मेनी प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर नेचर। Okay, so these laws we have discussed, and today we will talk about the formula of force from second law of motion. तो हम second law of motion पे आ जाते हैं। पहले second law of motion क्या कहता है? Second law of motion says that force is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum के इक्वल ही हमारी फोर्स होती है। मीन्स डेल्टा पी क्या होगा? हमारे पास सपोज वी आर हैविंग टू फोर्सेस है, हमारे पास दो क्या है यहाँ पर? मोमेंटम। मीन्स वी आर हैविंग टू वेलोसिटीज। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो आपकी एक वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो इनिशियल मीन्स इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है उसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा, और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है वो उसका फाइनल मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका? वही चीज। सपोज एक P2 है मोमेंटम और एक P1 है। P1 है mu क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और P2 है mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी v है। सो हम यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो दैट विल बी P2 माइनस P1, जो कि हम लिख सकते हैं m यहाँ से कॉमन लेकर के v माइनस u। ओके, तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ यही चीज रख दें देन आवर प्रॉब्लम सॉल्व्स। मीन्स f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन डेल्टा t। और आपको पता है वेलोसिटी में जब चेंजेस आते हैं टाइम के साथ दैट इज एक्सेलरेशन, ये वाला पार्ट हमारा एक्सेलरेशन है। सो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a बिकॉज v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। यही हमारा, यही से ही हमें फोर्स मिल जाती है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं k, जो कि न्यूटन ने बोला था कांस्टेंट। f इज इक्वल टू k m इंटू a, एंड इफ द वैल्यू ऑफ k इज 1 देन f बिकम्स m इंटू a। अगर k की वैल्यू 1 है तो f हो जाता है m इंटू a। दोबारा से देखेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जो हमारी फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का चेंज है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया।
अब v माइनस यू अपॉन टी या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा है ना, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का जो चेंज है वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी पुट अ कांस्टेंट k एंड इफ द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज 1, कांस्टेंट है तो वैल्यू नेवर चेंजेस, तो वैल्यू 1 आती है, तो f इज इक्वल टू m इनटू a। और यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला है जो कि हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया गया है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता ही चल गया है अब क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। जो नेट मोमेंटम होता है एक सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता है मतलब जैसा है वो वैसा ही रहता है, दैट नेवर चेंजेस, रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्वेशन बचाने को कहते हैं ना हम, यहाँ पे क्या है, जैसा मोमेंटम पहले था वैसा ही मोमेंटम बाद में रहेगा। अब ये पहले और बाद है क्या, वी विल टेक इट मैथमेटिकली। उससे पहले आप इस लॉ को एक बार स्टेटमेंट देखिए। It states that net momentum of a system remains conserved। एक net momentum मतलब अभी जैसे बात करी थी दो मोमेंटम की, तो अगर हमारे पास दो मोमेंटम है तो उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट। तो नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कैसे, वो देखते हैं हम। There are two balls, दो बॉल्स हैं यहाँ पे, वन इज A, अदर इज B। इट्स मास इज ma, इट्स मास इज mb, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ua, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ub। ये कब हो रहा है, बिफोर कोलिजन। कोलिजन मतलब इनके टकराने से पहले, तो बिफोर कोलिजन ये चीजें हमारे पास हैं। जब तक ये दोनों बॉल्स आपस में नहीं टकराई हैं तब तक they are having mass ma, और मास तो आगे भी चेंज नहीं होगा, and they are having the initial velocity ua। at conservation or the collision, collision पे क्या होता है, जब ये आपस में पास आती है, बॉल A बॉल B, तो मास तो उनका सेम रहता है ma, और ये हुआ आपका mb। बट जो फोर्सेस ये लगाएंगे, B A पे जो फोर्स लगाएगी वो होगी FBA, जो A फोर्स लगाएगा B पर वो होगी FAB। ये कब है, ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हुआ है, ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराए हैं तब। फर्स्ट केस हमारा ये हो गया, सेकंड केस हमारा ये हो गया। अब आता है आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद जब कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं तो वो कुछ दूर जो है चली जाती है, कुछ थोड़ा दूर और कुछ ज्यादा दूर नहीं जाती है, फिर भी द पोजीशन चेंजेस। तो यहाँ ये टकराई, सपोज टकराने के बाद ये बॉल इधर पहुंच गई, ये बॉल इधर पहुंच गई, ये A रहा, ये B रहा। इसका मास ma, इसका मास mb, बिकॉज मास नेवर चेंजेस, बट इसकी वेलोसिटी हो जाती है अब va और इसकी वेलोसिटी हो जाती है vb। ओके, सो ये हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन। जो हमारा थर्ड केस है वो है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब क्या है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले जब बॉल्स टकराई नहीं थी तब, बिफोर कोलिजन। उसके बाद जब बॉल्स टकरा गई ड्यूरिंग कोलिजन, और टकराने के बाद क्या होता है, तो वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस है देखिए आप, पहले उसकी वेलोसिटी ua थी, जब वो टकराए तो उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करी। A ने B पे जो फोर्स लगाई दैट वाज FAB, B ने जो A पर फोर्स लगाई दैट वाज FBA, और उसके बाद आपका आ जाता है आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो वेलोसिटी इनिशियल ua से बदल के हो गई va, ub से बदल के हो गई vb। सो अब हम इसको डिराइव करेंगे कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था, नेट मोमेंटम, दैट रिमेन्ड कंजर्व्ड। देखेंगे वो, फॉर बॉल ए बॉल के लिए
चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बॉल ए के लिए, इज इक्वल टू ma va माइनस ua अपॉन टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज क्या है m v माइनस u, यहाँ पे ये a आ गया है बस, ma va माइनस ua अपॉन टी। फॉर बॉल b, ऐसा ही बॉल b के लिए क्या हो जाएगा, mb vb माइनस ub अपॉन टी। तो आप देख रहे हो दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होते हैं, आपको पता है, और ए वाला जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ ए बी, बी वाला जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ बी ए। तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगी दैट विल बी टेकन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वही हम कर लेते हैं। वी विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए बी जो है वो हो जाएगा एम ए वी ए माइनस यू ए, और एफ बी ए आपका हो जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी। ये वो फोर्स है जो ए बॉल बी पे लगा रही है, ये वो फोर्स है जो बी बॉल ए पर लगा रही है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हमारा क्या कह रहा है, आवर थर्ड लॉ सेज दैट जो फोर्सेस होती हैं इक्वल एंड ऑपोजिट है, मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन हुआ, ये फोर्स लगी एफ ए बी, तो वहां एक रिएक्शन हुआ, दूसरी बॉल ने भी फोर्स लगाई दैट वाज एफ बी ए, बट दैट वाज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल और ऑपोजिट थी। यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें। अब एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इसके हम, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस के एम बी वी बी और माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। देख रहे हैं आप इसको। अब आप क्या कर सकते हैं, आप v की वैल्यूज एक साथ और u की वैल्यूज एक साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें नेट मोमेंटम लाना है। ओके, सो वी विल राइट हियर, यहां से वी विल राइट एम ए वी ए, यहां से हम इस वी बी को लेकर के आएंगे इधर, जो कि माइनस में है, प्लस का हो जाएगा, प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू, इधर क्या है आपका, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ला रहे हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इधर ही, और यही हमें प्रूव करना था। अब आप देखो, बिफोर कोलिजन यू थी वेलोसिटी, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, आफ्टर कोलिजन ये v हो गई थी, तो दोनों का जो मोमेंटम होता है दैट इज सेम, रिमेन्स कंजर्व, जो इतना था वही इतना यहाँ आ जाता है। दोबारा से देखेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल ए निकाला, दैट वाज एम ए वी ए माइनस यू ए। फॉर बॉल बी हमने निकाला एम बी वी बी माइनस यू बी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो हमने रखा एफ ए बी जो कि ए बी पर लगा रहा है एम ए वी ए माइनस यू ए, फिर बी ए जो कि बी ए पर लगा रहा है एम बी वी बी माइनस यू बी। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ we put that FAB is equal to minus FBA. Third law says that to every action there is equal and opposite reaction. Values यहाँ put करते हैं, MA VA minus UA is equal to minus के MB VB minus UB. Then we open the bracket by multiplying MA VA minus MA UA is equal to minus MB VB और minus minus plus MB UB. एक साइड कर लेते हैं हम, MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। ये फॉर्मूला आपको यू आर गोइंग टू गेट इट इन मेनी न्यूमेरिकल्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपने देखा इस चैप्टर में यू हैव स्टडीड व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होती है, यू हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, you have studied the effects of forces, then you have studied the expression of force, that is F is equal to m into A. How is it derived from second law, you have studied that one also, ये आपने पढ़ा।
उसके बाद you studied the SI units of force, that was Newton. To honor the scientists, the SI unit of the force is Newton, otherwise it can be written as kg meter per second square. M is F is equal to M into A. उसके बाद आपका आ जाता है that laws of motion, Newton's first law of inertia, जो कहता है rate that an object tends to remain in a state of rest or motion until and unless an external force acts on it. उसके बाद आपने पढ़ा second law of motion, that was rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. Third आपने पढ़ा to every action there is equal and opposite reaction. Then at last you studied the law of conservation of momentum, that states that net momentum of a system remains conserved. उसके derivation भी हमने देख ली है. Now your chapter 9 force and laws of motion has been completed. Now you have to solve the NCERT text question yourself. You have to try. Then you will ask your problem to me and you will write these notes in your fair notebooks. Till then, have a very nice day.